Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Zebunisa and this is your chemistry class for grade 9. I hope you all will be fine. Students, I know this is your first online classes and you are not used to for it. In the beginning, you will face some problem which may be sound problem or your concept may be not be clear or in writing issues you will face a problem, but there is no need to be worried. You can ask these problems from your concerned teacher through your phone call or messages. Now we will start our lesson, chapter number 5, and the topic is physical states of matter. What is matter? Anything which has weight or mass and occupies space is called matter. Everything around you is a matter. मतलब हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न हो, वेट हो और वो जो है जगह घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस में जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. नाउ व्हाट इज़ अ सब्सटेंस? सब्सटेंस इज़ एनीथिंग विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर थिंग. आपको पता है हर चीज़ की अपनी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट डिफर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन अदर थिंग. फॉर एग्जांपल, properties of water is sorry properties of water are entirely different from the properties of wood. You can understand, you know what is water, what is wood. So all these things are substances, and you cannot convert the properties of water into wood and properties of wood into water. So the substance whose properties cannot be converted into the properties of another substance are called elements. And you better know what are elements, and you know about the periodic table and the elements present in the periodic table. Students, we should start our lesson with pre-reading or introduction. यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसके इंट्रोडक्शन को इग्नोर ना करें. वहीं से आपको पता चलता है कि आप इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को या किन किन टॉपिक्स को डील करने जा रहे हैं, एंड वाई वी आर रीडिंग दैट और लर्निंग दैट और स्टडिंग दैट चैप्टर. नाउ we will start the topic what are states of matter. इसका मतलब है कि मैटर जो है आपके इर्द गिर्द कितनी हालतों में पाया जाता है. स्टेट्स का मतलब है किस किस हालत में पाया जाता है. इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम, अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, यू ऑब्जर्व योर रूम, यू विल फाइंड थिंग्स इनटू 3 states. First, gases. Number 2, liquid. Number 3, solid. These are 3 states of matter. आप खुद गौर कर लें. आप एक कमरे में हैं. कमरे में क्या है? हवा है, एयर है. And what is air? Air is a mixture of gases. So air is present and state of gas is present. Then look at the water. That is the liquid state of matter. Then look at the hard objects in the room. For example, table, your door, your chair, any other thing which are solid. That is the solid state. So there are 3 states of matter: gas, liquid and solid. And the other important thing, एक तीनों में एक चीज़ जो कॉमन है जिसको चेंज करने से एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है, और वो क्या है? दैट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस है
उस पे हर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है। जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड गैसेस, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर तक। लेकिन अगर उन्हीं पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की स्पेस को कम किया जाए, दे विल बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की स्पेस को कम कर दिया जाए, बहुत क्लोज कर दिया जाए, दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। So all the states of matter depend upon the intermolecular spaces. This is the key point which I told you. Now we will start gaseous state and its first topic is typical properties. यानी हम gaseous state की पहले property करेंगे, ठीक है, typical properties. First is the diffusion. What is diffusion? Diffusion is a movement of molecules from higher concentration towards the lower concentration. अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कहीं कमरे में रूटन एग है, रूटन एग किसे कहते हैं, ख़राब अंडे को, ठीक है, उसकी स्मेल जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। या आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल भी आपको पूरे कमरे में आएगी। इसी तरह अगर आप कहीं खाना बन रहा है कोई, तो उसकी स्मेल भी आपको आएगी। आप ये तीनों जो हैं स्मेल्स जो हैं एट अ टाइम फील कर सकते हैं। और जब जैसे जैसे आप उनके सोर्स के करीब जाएंगे, जैसे कि सोर्स का क्या मतलब, रूटन एग, आप उसके करीब जाएंगे तो आपको स्मेल ज़्यादा फील होगी, दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो जो उसके करीब है उसको हायर कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, दूर होते जाएंगे कम होती जाएगी तो वो लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह जिसने परफ्यूम यूज़ किया है वहाँ स्मेल ज़्यादा होगी और दूर होंगे तो खुशबू जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरह खाने की खुशबू भी। तो इसका मतलब है हायर कंसंट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द lower concentration. Or we can also say that the diffusion of a gas is its spreading tendency from one place to another, यानी उसके अंदर फैलने की सलाहियत है गैस में, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ होती है। और हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड, यानी गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एंड दे डू नॉट हैव एनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, इसलिए उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती या कोई रिपल्शन होती है। Thus, molecule of one gas can move easily between the molecules of another gas. That's why you can smell 1, 2 or 3 smells at a time. So, diffusion can be defined as the molecule of gases from higher concentrations toward the lower concentration, or the spreading tendency of gas molecules, or their gas molecules are widely separated from each other. They don't have any attractive or repulsive forces. I hope diffusion will be clear. Next we come to the effusion. What is effusion? The escape of gas molecule through the hole one after the other without collision is called effusion. Now here is a difference between diffusion and effusion. डिफ्यूजन में आपने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एट ए टाइम बहुत से गैस मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, बट इन इफ्यूजन मॉलिक्यूल एस्केप वन बाय वन थ्रू अ होल विदाउट कोलिजन, मतलब एक दूसरे से टकराए बगैर एक सुराख से वन बाय वन निकलते हैं, उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। और इसकी आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जब पंक्चर होता है टायर में
तो क्या होता है, एक त्वातर से गैस एक सुराख से निकल रही होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इफ्यूजन, ठीक है। अब ये डायग्राम देखें, लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन फील द डिफरेंस। ए इज़ डिफ्यूजन, जिसमें दो गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं, रेड कलर में और ब्लैक कलर में, ठीक है। और उसके लिए कोई वो नहीं है कि एक वक्त में एक ही जाएगा। लेकिन इफ्यूजन में आप देखें, सिर्फ वन बाय वन थ्रू अ होल, इट इज़ कॉल्ड इफ्यूजन। Okay, students, your homework is differentiate between diffusion and effusion with the help of example and diagram. Diagram is compulsory. This is your homework. Have a nice day. Wish you all the best. Allah Hafiz.